1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 1 चैप्टर 18 वर्स से 32 वर्स, सैम्स 35 चैप्टर, 36 चैप्टर, 37 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 वचन से 32 वचन, भजन संहिता 35 अध्याय, 36 अध्याय, 37 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 1 चैप्टर 18 वर्स से 32 वर्स। रोमन्स 1 चैप्टर 18 वर्स से 32 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shewed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 वचन से 32 वचन तक पढ़ेंगे। मनुष्य जाति का पाप 18 वचन से। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है,
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। Psalms 35, 36, 37 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Psalms 35, David prays for safety. He pleads with God to do him right. A Psalm of David. First verse. Plead my cause, O Lord, with them that strive with me. Fight against them that fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul. Let destruction come upon him at unawares, and let his net that he hath hid catch himself into that very destruction. Let him fall. And my soul shall be joyful in the Lord, it shall rejoice in his salvation. All my bones shall say, Lord, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him. False witnesses did rise up. They laid to my charge things that I knew not. They rewarded me evil for good, to the spoiling of my soul. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, and my prayer returned into mine own bosom. I behaved myself as though he had been my friend or brother. I bowed down heavily as one that mourneth for his mother. But in mine adversity they
rejoiced and gathered themselves together. Yea, the objects gathered themselves together against me, and I knew it not. They did tear me and ceased not. With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth. Lord, how long wilt thou look on? Rescue my soul from their destruction, my darling from the lions. I will give thee thanks in the great congregation. I will praise thee among much people. Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me, neither let them wink with the eye that hate me without a cause. For they speak not peace, but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land. Yea, they opened their mouth wide against me, and said, Aha, aha, our eye hath seen it. This thou hast seen, O Lord. Keep not silence, O Lord, be not far from me. Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Judge me, O Lord my God, according to thy righteousness, and let them not rejoice over me. Let them not say in their hearts, Ah, so would we have it. Let them not say, We have swallowed him up. Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt. Let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves against me. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, Let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant, and my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long. Psalms 36. Miserable estate of the wicked, excellency of God's mercy. To the chief musician, a psalm of David, the servant of the Lord. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes. For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He hath left off to be wise and to do good. He deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep. O Lord, thou preservest man and beast. How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. There are the workers of iniquity fallen, they are cast down, and shall not be able to rise. Psalms 37. The happy state of the godly, and the short-lived prosperity of the wicked. A psalm of David. First verse say, Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord,
and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth. The Lord shall laugh at him, for he seeth that his day is coming. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation. Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous. The Lord knoweth the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed or in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. They shall consume, into smoke shall they consume away. The wicked borroweth and payeth not again, but the righteous sheweth mercy and giveth. For such as be blessed of him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful and lendeth, and his seed is blessed. Depart from evil, and do good, and dwell for evermore. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein forever. The mouth of the righteous speak wisdom, and his tongue talketh of judgment. The law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged. Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. But the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them, because they trust in him. भजन संहिता 35, 36 और
37 अध्याय पढ़ेंगे हिंदी में, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद का भजन 35 अध्याय पहले वचन से। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहे कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगिया भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे, उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं। वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। बहुतेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नैन से सहन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर न रहे। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढंप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। 36 अध्याय मनुष्य की दुष्टता। प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का भजन। पहले वचन से पढ़ेंगे। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। परमेश्वर की करुणा। हे यहोवा, 5 वचन से आगे,
तेरी करुणा इस स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। दाऊद का भजन 37 अध्याय पहले वचन से। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छीदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान तृप्त हो जाएंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है।
उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 11:14 to 26 वर्स, जोशुआ 24 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14 वचन से 26 वचन तक। यहोशुआ की पुस्तक 24 अध्याय। जब हम पढ़ेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग को अकेले में अपने पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे। ऐसा करते हुए जब हम परमेश्वर का वचन अपने अंदर ले रहे होंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हमको कुछ अगुवाइयाँ करेगा, वह हमने लिख लेना है नोट्स में, और उसके अनुसार हमारे जीवन को रोज के जीवन में चलना है। ऐसा हम करते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने बड़े कामों में उपयोग करता है। परमेश्वर हमें एक ये होने के लिए अनुग्रह दिया है। इस अनुग्रह का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।